اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں، ہم جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر کیا لے کر جا رہے ہیں؟ مرنا سارے نہیں ہے، تینوں بھی پتا ہے، مینوں بھی پتا ہے، پوری دنیا نو پتا ہے۔ اب مرنا کب ہے یہ کسی کو نہیں پتا، یعنی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ڈنک ہے جو ہمیں لگے گا ضرور، لیکن یہ نہیں پتا کہ کب لگ جائے۔ ہو سکتا ہے آگے 10 منٹ، 10 دن یا 10 سال میں ہم میں سے کئی چہرے یہاں موجود نہ ہوں، لیکن جو چلا گیا اس سے کچھ عبرت حاصل کیجئے، کچھ سبق سیکھیے کہ ہمارے والد صاحب تو چلے گئے، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ ایک میسج چھوڑ کے چلے گئے کہ بیٹا چلیا تساں بھی جانا ہی ہے۔ اب آپ ساتھ کیا لے کر جا رہے ہیں جہاں پر جائیں گے؟ یہ ایک نہایت مقدس رسم، نہایت ہی پاک رسم ہے، اس میں ہمیں ٹھیک ہے غمزدہ ہونا ہے، لیکن دوستو اگر آپ کلام کو پڑھتے ہوں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کائنات کے دھرتی کا سب سے زیادہ خوشی کا وقت ہی یہ ہے۔ اگر آپ کلام کو پڑھتے ہوں گے، اگر آپ نے پیدائش سے مکاشفہ تک اس کلام کو پڑھا ہوگا تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ وقت جو ہم پر گزرا یہ تو بڑا خوشی کا وقت ہے۔ آپ کو پتہ مقدسین کہتے تھے، مقدس پولس رسول کہتے ہیں میرا دل تو کرتا ہے ابھی اس دنیا سے کوچ کر کے خدا کے تخت پر جا بیٹھوں یا خدا کی بادشاہی میں جا بیٹھوں، لیکن تم اور تمہاری نسلوں کے لیے مجھے زمین پر رہنا ضرور ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جلدی موت آئے تاکہ اسی جائیے، انہوں نے پتا سی اسا کتھے جانا ہے۔ وہ موت سے ڈرتے نہیں تھے، وہ موت سے اسے نہیں تھے ڈرتے کیونکہ ان کو پتا تھا ہمارے اندر ہے کیا۔ ڈرے گا وہی جنوں پتا ہے میرے اندر کاکھ بھی نہیں۔ ہمیشہ موت سے وہ ڈرتا ہے جس کو پتا ہے میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ یسوع آج آ جائے، یعنی سب موت دے وچ چلے جان، تو کئی ہمارے لوگ ایسے ہوں گے کہیں گے حالے رک جا 1 سال 2 سال یا 10 سال، حالے میں بھی کرنا ہے بھی کرنا ہے بھی کرنا ہے۔ ہمیں سب سے بڑی کائنات کی برکت کے بارے میں پتا ہی نہیں، کیونکہ دوستو ہم کلام سے دور ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، بچے، نوکری، پیسہ، یہ سب چیزیں ایک طرف، یہ کلام خدا ہے ایک طرف، یہی خدا ہے۔ اسی کے بارے میں لکھا ہے یوحنا پہلے باب میں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا ہے، یہ خدا ہے۔ یسوع مسیح کو جاننا ہے تو یہ بائبل مقدس، یہوہ پاک خدا کو جاننا ہے تو بائبل مقدس، روح القدس کو جاننا ہے تو بائبل مقدس۔ کائنات میں کوئی فرشتہ آ کر آپ کو کلام نہیں دے گا، آپ کے خوابوں میں، آپ کے معموں میں کوئی سفید لباس پہنے ہوئے یسوع مسیح آپ کو کلام نہیں دے گا، کوئی نبی رسول چرواہا قبر سے اٹھ کر آپ کو کلام نہیں دے گا۔ سارے نبی رسول چرواہے اور زندہ خدا اور تمام فرشتوں کے پیغامات اس زندہ خدا یعنی تحریری خدا بائبل مقدس کے اندر ہے۔ اگر آپ اس بائبل کو نہیں پڑھتے تو یاد رکھے گا دوستو، آپ اور میں اس زمین پر ایک زندہ کیڑے کی طرح ہیں، ہم جانوروں کی طرح ہیں۔ جانور بھی نہیں پڑھتے، ہم بھی نہیں پڑھتے۔ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں یہ پتا ہوگا کہ کل نو میں جتھے جانا وے، یہ جڑی میری جگہ ہے اوتھے میں کی نال لے کے جانا ہے۔ تو میرے ساتھ مرکزی آیات کو سنیے گا غور سے۔ پیدائش کی کتاب مقدس موسیٰ کی معرفت لکھی گئی، یسوع مسیح کی پیدائش کی کتاب، یہوہ پاک الوہیم زندہ خدا کی پیدائش کی کتاب، پہلی کتاب اس کا 47 چیپٹر، اس کا 47واں باب اور اس کی 7ویں سے 9ویں آیت تک پڑھوں گا۔ غور سے سنیے گا اس استباق میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور یوسف اپنے باپ یعقوب کو اندر لایا اور اسے فرعون کے سامنے حاضر کیا، اور یعقوب نے فرعون کو دعا دی، اور فرعون نے یعقوب سے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال کی ہے؟ ٹو دی پوائنٹ آیت سنیے گا اس ورس میں کیا لکھا ہے۔ یعقوب نے فرعون سے کہا کہ میری مسافرت کے برس 130 ہے۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت کا سبب ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ اب یہاں پر فرعون پوچھ رہا ہے کہ باپ یعقوب، ہمارے باپ یعقوب اسرائیل سے کہ تیری عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری مسافرت دے جڑے سال نے، انہیں ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میری عمر اتنی ہے۔ یہ فارمولا آپ بھی آزما سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کی عمر کتنی ہے تو آپ بھی باپ اسرائیل کی نقل کر سکتے ہیں، کاپی کر سکتے ہیں کہ میری مسافرت دے دن 33 برس دینے، میری مسافرت دے دن 40 سال دینے، میری مسافرت دے دن
50 साल ने, मेरी मुसाफरत दिन 80 साल ने, या मेरी मुसाफरत दिन 90 साल ने। यहां खुदा का सूरमा बताता है कि मेरी मुसाफरत के दिन 130 बरस के हैं, यानी कि मैं इस जमीन दे उत्ते मुसाफिर हां और मेरे बरस हो चुके ने 130 साल तो मैं इस जमीन दे उत्तर हिजरत ही करदा जा रहा, टुरदा फिरदा ही रहा, मुसाफरत ही कर रहा। अब जब आप मुसाफरत करते हैं तो एक मुस्तकिल, आपने आईडी एनआईसी कॉपी देखी होगी, एनआईसी आप लोगों का शनाख्ती कार्ड होगा, शनाख्ती कार्ड के पीछे 2 पते लिखे होते हैं, एक मुस्तकिल पता और एक टेम्परेरी, जहां पर आप कुछ देर के लिए रहे और फिर जाके एक परमानेंट जगह पर चले गए। 2 पते लिखे होंगे, जिथे तुसी पहला सो ते जिथे तुसी होन हो। अब जो परमानेंट एड्रेस है, जो मुस्तकिल पता है, वो बाप याकूब इसराइल कुछ और बताना चाह रहा था। कहने को वो ये भी कह सकता था कि मैं इस जमीन पर इतने सालों से रह रहा हूं, वो कह रहे नहीं, ये जमीन के ऊपर मैं मुसाफिर हूं। मत्ती 5 बाब जब आप पढ़ते हैं मुबारकबादियां, तो पहली मुबारकबादी मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। कोई बता सकता है दिल के गरीब किसे कहते हैं? आज ये मत सोचिएगा कि कोई बड़ा है या छोटा है, आप मुझसे सीखें, मैं आपसे सीखूंगा। आप अपना वक्त जाया करके ना जाइएगा। आए हैं, आपने अपने जिस्म की कुर्बानी दी, आपने अपने घर की कुर्बानी दी, आपने अपने वक्त की कुर्बानी दी, आप यहां पर मौजूद हैं, तो कुछ समझ के जाइएगा कि कल वही मर जाइए तो साडे को एक उम्मीद होनी चाहिए। खुदावंद फरमाता है मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही के दिल के गरीब किन्नू कहंदे ने? कोई भी बता सकता है जी? जय मसीह की, जबरदस्त। और कोई दिल के गरीब किसे कहते हैं जी? बर्दाश्त कर लेना या जय मसीह की, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बाबरकत जवाब। और कोई दिल के गरीब किसे कहते हैं? चले मैं आपको एक हिंट देता हूं, डाकू किन्नू कहंदे ने? जड़ा लुट लेंदा है। याद रखिएगा दोस्तों, 9 नेमतों में से एक इल्मियत की नेमत भी है। इल्मियत की नेमत खुदा की तरफ से मिलती है। एक इल्म स्कूलों दा, कॉलेजां दा, यूनिवर्सिटी दा, और एक इल्म जे ऐ जिंदा खुदा दा। ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਐਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਮੀਅਤ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁੱਲੇਗਾ। डाकू अरबी जुबान का लफ्ज है, अरबी जुबान का, और डाकू का मतलब है डाक पहुंचाने वाला। खातून ना खतूत, खतूत पहुंचान, डाक पहुंचाने वाले को डाकू कहते हैं। अरबी ओरिजिनल जुबान के अंदर जो इस जुबान का, इस लफ्ज का मफहूम है, लेकिन पाकिस्तान दे विच आंदे आंदे ए लफ्ज दा मतलब बदल गया। इस लफ्ज दा मतलब बदल गया, असा डाकू किसी होर शय नूं बना छड़िया। इसी तरह मुसाफिर लफ्ज जो है वो फारसी जुबान का लफ्ज है, और मुसाफिर लफ्ज का मतलब है दिल के गरीब। गरीब लफ्ज जो है, असी गरीब कहने वो जड़ा बड़ा ही माठा होंदा है या जड़ा बड़ा माड़ा होंदा है। मैं अगर पूछा कौन कौन गरीब है तो हाथ खड़ा करके कोई जवाब दे सकता है? कोई गरीब है यहां? अच्छा, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। वाकई साडे विच कोई गरीब नहीं। हम लोग क्या है फिर? हम लोग क्या है? आपका जो बाप है वो इस कायनात का मालिक, और आप उसके शहजादे और शहजादियां हैं। आप कुल कायनात के मालिक हैं। आप में से कोई भी गरीब नहीं है। लेकिन गरीब लफ्ज जब आप फारसी जुबान में देखते हैं, ओरिजिनल मतन जब इसका देखते हैं, तो गरीब का मतलब है मुसाफिर। गरीब का मतलब वो नहीं जेड़े कूड़ा कट करके बैठे होंगे या कचरा कुंडी ते बह के खांदे ने। गरीब वो नहीं है। दिल के गरीब का मतलब है जिसने दिल में ये सोच लिया कि मैं इस जमीन पर मुसाफिर हूं। ऐ जमीन ते मेरा कोई बुखरा नहीं है, ऐ जमीन ते मेरा कोई काम नहीं है। मैनू एक टेस्ट दिता गया, एक प्रोजेक्ट दिता गया, मैं इस जमीन के उत्ते प्रोजेक्ट नू कंप्लीट करना है तो वापस चले जाना है। किथे? आपने मुस्तकिल पते थे। फिलिपियो 3 बाब 10 आज पढ़ते तो वहां पर मुस्तकिल पता है, वहां पर लिखा है पर आसमान जो हमारा घर है, आसमान जो हमारा घर है। यह जमीन हमारा घर नहीं है, आसमान जो हमारा घर है।
यहां पर हमें एक काम दिया गया, एक प्रोजेक्ट दिया गया कि ये ले बेटा जिन्हें बच्चे नहीं ਉਹ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਹੋਈਏ। खुदा ਕਹਿੰਦਾ ठीक है मैं तेनू औलाद देना, ਹੁਣ ਤੂੰ औलाद ना करेंगी की, या ਹੁਣ तू ऐसा औलाद ना करना की है। इमसाल की किताब में लिखा है, जो अपने बेटे पर छड़ी नहीं उठाता, जो अपने बेटे पर तंबी नहीं करता, जो अपनी औलाद को तंबी नहीं करता, वो बाद में रुस्वा होता है। खुदा आपको हर एक चीज मुहैया करता है इस जमीन के ऊपर। जब आप कलाम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मैं इस जमीन पर मुसाफिर हूं, मुझे एक दिन इस जमीन को छोड़कर जाना है। डरेगा ओ जिन्हें बाइबल नहीं पढ़ी, डरेगा ओ जड़ा यीशु मसीह ਨੂੰ नहीं जानता, डरेगा ओ जड़ा यहोवा खुदा ਨੂੰ नहीं जानता, और डरेगा ओ जड़ा खुदा रूह कुदस ਨੂੰ अपने अंदर महसूस नहीं करता, वो मौत से डरेगा। रही बात बीमारी की, बीमारियां इंसानों पर आएंगी, चाहे वो नबी हो, चाहे वो रसूल हो, चाहे वो चरवाहा हो, चाहे वो मुबशर हो, चाहे वो कायनात का कोई भी बड़ा सूरमा क्यों ना हो, बीमारी उसे लपेटे में लेगी। खुदा ने अकल दी है, अपने जिस्म को आपने कंट्रोल में रखना है। अगर इसके साथ ज्यादती करेंगे तो आप बीमार होंगे। आप बीमार होंगे चाहे आप कोई भी हैं। मैंने कई ऐसे बहन भाइयों को जानता हूं जिन्होंने 7 दिन 7 रात रोजे रखे, लेकिन वो चारपाई पे पड़ गए, लेकिन जो उनका मकसद था खुदा ने उन्हें पूरा किया। क्यों? क्योंकि इंसान का जिस्म कमजोरी मांगता है। आप अगर जिस्म के साथ कुछ ऐसा करेंगे तो जिस्म के ऊपर रिएक्शन उसका होगा, चाहे आप कोई भी हैं। अब सुनिएगा, टू द पॉइंट फिर बात करते हैं कि आप इस जमीन के ऊपर मुसाफिर हैं। मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही कि गरीब ओ ने जेड़े कचरा कुंडी ते ने, गरीब ओ ने के जेड़े दिल च सोच के बैठे ने कि असी इस जमीन दे उत्ते मुसाफिर हां। असी गरीब दा मतलब है असी इस जमीन दे उत्ते मुसाफिर हां। जिंज बाप याकूब कहंदा है कि मैं इस जमीन दे उत्ते 130 बरस मुसाफरत दे गुजार चुके हां। बाप याकूब के ऊपर नबूवती कलाम था, उसे पहले ही खुदा ने बता दिया, और उसने हमें बता दिया पैदाइश में कि साडी ए जगह नहीं जे। जिन्ने रास्तबाज ने, जिन्ने यसू ते ईमान रख देने, जिन्ने कलाम दी मुनादी कर देने, जिन्ने बाइबल च जो लिखा है और ते अमल कर देने, ये मैसेज उनके लिए है। ते जेड़े दुनियावी कम्मां च पे ने उन्हां लिए मैसेज नहीं है। उन्हां नूं ऐ अज ऐ करना, कल ऐ करना, परसों ऐ करना, चौथा ऐ करना है, ते पंजवें दिन मर जाना है, और मरने से डरेंगे। ये कलाम खुदा को पढ़ना और इसको दिल में लेना आप सभी का फर्ज है। खुदा यीशु मसीह ने कहा सबको में जाओ और इन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। क्या ये मुकद्दसीन से कहा? क्या ये मसीहियों से कहा? क्या ये ईसाइयों ने क्या? क्या ये मुसलमानों को कहा? क्या ये हिंदुओं को कहा? ये कायनात के हर एक इंसान को कहा, और खुदा आखिरत में हर एक का गिरेबान पकड़ेगा। ये किसी पादरी को नहीं कहा खुदा ने, ये किसी मुबशर को नहीं कहा, ये फर्ज हर एक इंसान के ऊपर है। जितने जिंदा खुदा को मानते हैं ये फर्ज उसके ऊपर है। और आप ये काम तभी कर सकते हैं जब आप इस खुदा को पढ़ते होंगे। इस खुदा को पढ़ना ही सब कुछ है, वरना कल नूं असा मर जाना है ते असा उत्ते कख कंडा कुछ नहीं जे लेके जाना। खुदा हमारे साथ क्या करेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो इसमें लिखा हुआ है। हमारा परमानेंट एड्रेस यहां का नहीं है। खाक है तो हम खाक में लौट जाएंगे, और रूह वहां जाती है जहां पर उसे जाना चाहिए। जिस खुदा ने रूह दी उसी के पास जाती है। अब कायनात के सारे लोग जब मर जाएंगे या कुछ जिंदा होंगे तो याद रखिएगा दोस्तों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा आखिरी नरसिंगा के साथ, पिछले नरसिंगा के साथ, अपने मुकद्दसों के साथ, बादलों के साथ, अपने लोगों के साथ आएगा। और पहले तो वो जो मुर्दा है उठ खड़े होंगे, खुदावंद के नाम का इस्तकबाल करेंगे, और फिर वो जो जिंदा है वो पलक झपकते बदल जाएंगे और हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। सारे मुर्दे जिंदा किए जाएंगे। कायनात में हर एक मुर्दा, वो चाहे फराउन क्यों ना हो, वो चाहे रामसिस क्यों ना हो, वो चाहे ऐसे लोग क्यों ना हो जो अपने आप को खुदा मानते हो, वो चाहे ऐसे लोग क्यों ना हो जिन्होंने 2-2 साल के बच्चे मरवा दिए, हर एक मुर्दा जिंदा किया जाएगा। दानियल की किताब में लिखा है कुछ हयाते अबदी के लिए और कुछ जिल्लत और रुसवाई अबदी के लिए। अबदी का मतलब क्या है? एवरलास्टिंग। कुछ जिल्लत रुसवाई, बाइबल में लिखा है उससे मत डरो जो जान को कत्ल करता है, उससे डरो जो जान और रूह दोनों को आग में डालता है। जब रूह आग में डलेगी, 1 दिन 2 दिन 1 घंटा 2 घंटा नहीं सड़ना।
अबदी सड़ना होगा, अबदी जिल्लत और रुसवाई होगी, अबदी जिल्लत और रुसवाई होगी। आप रोजों के अयाम चल रहे हैं, कितने लोग हैं जो रोजे रख रहे हैं? कोई कोई भी नहीं रखता। चले ठीक है, आज से आप तहैया करें, आपके मुसाफरत के दिन मुबारक हो, रोजा रखिए। ये कलीसियाई इंसानी रोजे आप लोग के लिए दिए गए हैं, आप यही रख लें। बाइबल देते साढ़े को रखे भी नहीं जाने, आप यही रोजे रखें और इस कलाम खुदा में से ये अहद करें कि खुदावंद मेरी आखिरत मुबारक हो। मुझे अगर कलाम पढ़ना नहीं आता तो मेरे बच्चों को इतनी अकल दे कि ये मुझे कलाम सुनाए, वरना इस कलाम के वसीला से आप बच सकते हैं। कायनात में और कोई मेजरिंग स्टिक नहीं है, और कोई मेजरमेंट नापने वाला आला नहीं है जिससे आपको नापा जाए और आपको खुदा की बादशाही और जिल्लत और रुसवाई अबदी दोजख में डाला जाए। सिर्फ ये एक ही आला है। मैं बच्चों से पूछता हूं, कितने जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने मैट्रिक इंटर किया है? एक है। आपने क्या किया हुआ है? बीए किया हुआ है जी। कितने? एमबीए। जय मसीह की जी। आपने मैट्रिक, आपने कुछ नहीं किया। मेरी बीवी ने हाथ नहीं चुकिया। याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग पढ़े लिखे हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ जिन्हां दे मां प्यो अनपढ़ ने? मां प्यो अनपढ़ ने। जय मसीह। आप तो सनी कहाँ है? रॉबर्ट भाई कहाँ है? काम दे बंदे जिन्हां ने कराई इबादत वो थल्ले ने। रॉबर्ट भाई, आपने अपनी वालदा को कलाम सुनाया कभी? हैं? कभी कभी नहीं, रोटी रोज खाते हैं तो कलाम भी रोज सुनाना है। जी सिस्टर, आप अपनी वालिद को या वालदा को डेली कलाम सुनाते हैं? जरा कहते ना कभी कभी, उन्हें कभी कभी भी नहीं सुनाया कभी। मुझे पता है अच्छी तरह जी। और कोई ऐसा बंदा हो जो कहे कि मैं अपनी माँ को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे कलाम सुनाता हूं ताकि जब मेरी माँ इस जमीन को छोड़कर जाए तो वो अच्छी जगह पर जाए। कोई शय नहीं जे दोस्तों कम आनी, ना पैसे कम आने जे, ना नौकरियां कम आनियां जे। औलाद दे पीछे तुसी 2-2 नौकरियां कर दे हो। मैं ऐसे माँ बाप को जानता हूं जो रोडों से कूड़ा उठाते हैं। मैं ऐसे माँ बाप को जानता हूं जो लोगों के बर्तन मांजते हैं, जो झूठे बर्तन मांजते हैं। मेरी माँ मांजती रही, मेरी माँ मांजती रही, 2-2 नौकरियां करती रही, मुझे पढ़ाया उसने। अरे पढ़ा के क्या कर लिया उसने? आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया है, आप पढ़ लिख कर अपने माँ बाप को क्या देते? पैसे देते, अच्छी नौकरी देते। अरे अच्छी नौकरी, पैसा वो आपसे ज्यादा कमा लेते। आप क्या देते हैं? आपको खुदा ने इसलिए पैदा किया कि आप पढ़ लिख जाए और आपके वसीला से दूसरी रूहें भी बचे। आप पढ़े लिखे क्योंकि आप बाइबल को डेली पढ़े, आप खुदा को डेली पढ़े। जैसे आपकी रूह बच गई, अब आपका फर्ज बनता है कि कलाम खुदा को घर से शुरू करें। अपनी रूह को तो आपने बचा लिया, लेकिन माँ की रूह को कौन बचाएगा? बाप की रूह को कौन बचाएगा? बहन की रूह को कौन बचाएगा? फिर हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे भाई क्या करते हैं? कोई नशे में है, कोई फांसी ले रहा है, कोई फिनाइल पी के मर रहा है, कोई अपने आप को आग लगा के मर रहा है, क्योंकि खुदा के कलाम का बीज उसके अंदर नहीं बोया गया। जब कलाम का बीज नहीं बोया जाएगा तो फिर इमसाल की किताब कहती है कि वो माँ बाप को रुसवा करेंगे। माँ बाप को क्या करेंगे बच्चे? रुसवा। माँ बाप हमारे पढ़े लिखे नहीं, उनका गुनाह नहीं है कि आपको कलाम नहीं सुनाया। आप जिस डिनोमिनेशन में जाते हैं उस पास्टर को पकड़िए कि मुझे ऐसा कोई सिस्टम दो जो मैं डेली बाइबल स्टडी कर सकूं। वो भी नहीं कर सकते तो ये खुदा का कलाम आपके घरों में पड़ा है, तो 1-1 इंच उत्ते मिट्टी चढ़ी होनी है। जो इस पर मिट्टी चढ़ाएगा खुदा उस पर और उसकी नस्ल पर मिट्टी चढ़ाएगा। खुदा आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने कभी इसको खोला नहीं, और जिसने नहीं खोला वो याद रखे आज उसके लिए मौका है। जब तक नहीं था सुना तब तक आप बचे रहे। ऐसा कलाम आपको चर्चिस में नहीं मिलेगा, ऐसा कलाम आपको जिंदा खुदा के कलाम में मिलेगा कि आप इस जमीन पर मुसाफिर हैं। आप क्या मांगते हैं? अंकल ने कितनी खूबसूरत दुआ की, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। देनदार खुदा के नहीं। क्या मांगते हैं आप जी? जय मसीह की। दोस्तों याद रखिएगा, हमने जब भी मांगा है, क्या हमने कभी यह मांगा खुदावंद मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दे कि जो शेर के जबड़ों में इंसान फंसा हुआ है मैं इसको निकाल बाहर खींचूं?
आसमानी अब्बा मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दे कि जो इब्लीस के मुंह में फंसा हुआ है मैं इसको निकाल बाहर खींचूं। आसमानी अब्बा जो रोड पर मेरे बहन भाई चरस पी रहे, हेरोइन पी रहे, शराबे पी रहे, मैं इनके अंदर घुसकर कलाम करूं और इन्हें बचा सकूं। मेरे भाई जो डकैत है, जो कातिल है, आसमानी अब्बा मुझे इतनी हिकमत और इल्मियत का कलाम दे, मैं जाके इन्हें कलाम सुनाऊं और इनकी नस्लों को बचाऊं। आसमानी अब्बा मेरे माँ बाप जिन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, अपने घुटनों का भी हिसाब नहीं रखा, उनके जिस्मों में दर्द, उनकी हड्डियों में दर्द, और माएँ तो ऐसी होती वो बताती भी नहीं कि मेरे बच्चे कहीं परेशान ना हो जाए। अरे माँ का कुछ हिसाब रखिए, अपने खुदा से मांगिए, ऐ खुदा मुझे एक कलाम दे दे कि कल को मेरी माँ इस जमीन को छोड़े तो अर्शे मुल्ला तेरे तख्त पर जा बैठे। हालेलुया। यीशु के कलाम के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये मत मांगिए मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे पैसे दे दो, खासकर मुझे औलाद दे दो। आप खुदा की नस्ल है। अगर आपके पास औलाद नहीं तो खुदा आपको औलाद देगा। ये ज़हन में रखें कि कल को मेरे गर्दन पर तलवार होगी, कल को मेरी कनपट्टी पर बंदूक होगी। ये वक्त आएगा जब कौमें मुझसे पूछेंगी कि तू यीशु के नाम की मुनादी करेगा कि नहीं। ऐ खुदा मुझे हिम्मत और ताकत अता फरमा कि मैं आखिरी दम तक तेरे नाम पर टिका रहूं और वो जिंदगी का ताज, हमेशा का ताज तुझसे हासिल कर सकूं। कल को हमने मर जाना है दोस्तों, लेकिन जब मर जाना है तो साथ क्या लेकर जा रहे हैं? ये कलामे खुदा जो अनपढ़ हैं और उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी रूह भी बचाएं। असा इन्हें ना पढ़ लिया ते असा खुदा नहीं पढ़िया तो किसे काम दा है? किसे काम दा है? बहने भाई अक्सर कहते हैं अही ते अनपढ़ आ, सानू पढ़ना नहीं आंदा। असी ते अनपढ़ आ, सानू पढ़ना नहीं आंदा। आप यूहन्ना 7 बाब पढ़िए, यीशु मसीह भी चिट्टे अनपढ़ थे। किसन चिट्टे अनपढ़ थे। आप माल 4 बाब पढ़िए, यीशु मसीह के जितने हवारी, जितने शागिर्द थे वो भी चिट्टे अनपढ़ थे। कोई मदरसे की तालीम नहीं, कोई स्कूलिंग सिस्टम नहीं, कोई कॉलेज सिस्टम नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी सिस्टम नहीं है। अगर पढ़ा है तो वो जिंदा खुदा के कलाम को पढ़ा है। क्या आप नहीं जानते कि उनके पास स्कूल के इल्म से ज्यादा इल्म था? क्या आप नहीं जानते कि उनके पास इंजीनियरिंग के इल्म से ज्यादा इल्म था? क्या आप नहीं जानते कि अयूब की किताब में लिखा है कि ऐ खुदावंद, मैंने जब तेरे कलाम को पढ़ा तो मुझे पता चला कि जमीन से ज्यादा ऊंचे पहाड़ समंदर के अंदर हैं। क्या आप नहीं जानते कि कलाम खुदा मिसाल की किताब में लिखा है कि हवा के अंदर जितने रास्ते हैं उससे ज्यादा रास्ते पानी के अंदर हैं? क्या आपने नहीं पढ़ा कि खुदा नोहा की किताब में फरमाता है कि खुदा जब एक बेटी प्रेग्नेंट होती है, एक मां प्रेग्नेंट होती है, तो जितने फेफड़े और गुर्दे ये कहां जाते हैं? एक चीज छोटी से बड़ी होती है तो खुदा का कलाम फरमाता है हड्डियां अपनी जगह ले लेती है, गुर्दे अपनी जगह ले लेते, फेफड़े अपनी जगह ले लेते, और एक बच्चा पैदा होता है। ये इल्म सारा कहां से आया? आप जानते हैं एक बीज बोया जाए तो तभी पौधा उगता है, लेकिन क्या आप ये नहीं जानते कि खुदा ने चौथे दिन कहा सारे पहाड़ बन जाए, चौथे दिन का सारी मछलियां बन जाए, चौथे दिन का सारे पौधे बन जाए, चौथे दिन का सारे दरख्त बन जाए। कोई बीज डाला वहां पर? कोई बीज नहीं डाला। आप जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं। मांगिए, खुदा से मांगिए, खुदा से कहिए खुदा मुझे इस्तेमाल कर, मैं अपनी मां को बचा सकूं। ऐ खुदा मुझे इस्तेमाल कर, ये मुसाफरत के जो दिन है इनमें मैं कलाम खुदा सुना के अपने बाप को बचा सकूं। मांगिए, खुदा से मांगिए। ज़बूर 2 में लिखा है ऐ मेरे खुदा मुझे कौमे मिरास में दे। तो खुदा कहता है ऐ मेरे बेटे मैं तुझे कौमे मिरास में दे दूंगा। यशुआ को कहता है ऐ यशुआ तेरे पांव का तलवा जहां पर टिकेगा वो जगह, वो सल्तनत, वो घर, वो पूरे का पूरी बादशाह तेरी। हालेलुया। यीशु मसीह के पाक कलाम के लिए और एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करे नाम की तारीफ। अच्छा आपने लिए क्या थे और दी बजाइए दोस्तों। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। ये घर गमज़दा घर नहीं है।
हमें इतना पता है कि हमारा वालिद जहां पर है वो हमसे अच्छी जगह पर है। खुशी मनाइए कि यस्सु ने आपके लिए जान दी है। खुशी मनाइए कि यस्सु ने आपके लिए जान दी है। मैं आपको एक छोटी सी अपनी गवाही पेश करता हूं। जब मेरे वालिद साहब फौत हुए, मैं इस धरती का सबसे मैला, निकम्मा और नापाक इंसान था। लेकिन जब मेरे वालिद फौत हुए तो मैं एक महीना कभी इधर टकरा मार तो कभी उधर टकरा मार। बहन भाइयों के सामने नहीं था रोता, क्योंकि वो पता नहीं मुझे देख के बेहोश हो रहे थे या अब्बू की फौतगी से बेहोश हो रहे थे। फिर मैंने थोड़ा सोचा कि बड़ा मैं ही हूं, तो थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अब एक महीना बैक टू बैक, क्योंकि नान के सारे इसी फील्ड में है, खुदा की फील्ड में, रोज डेली इबादत होती थी, तो मैं सुन रहा था ये क्या बोल रहे हैं। मुझे एक चीज का वहां पर पता चला कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम, कायनात का ऐसा बंदा था जिसने 33 साल के अंदर पूरी जमीन को फतह किया, हर एक बादशाह को मारा और उसे फतह किया। तो जो मरन वाला सी ना, एक छोटे जे मच्छर ने उन्हें वड के मार दिता। घमंड आ गया कि जमीन का बादशाह तो मैं हूं। नबूकदनजर ने देखा पूरी कायनात दा बादशाह मैं वा। खुदा ने उसका एक स्क्रू ढीला किया, जानवरों के साथ खाना खाता रहा, इतने इतने नाखून, और पूरा जानवर ही बन गया। मुझे एक चीज की समझ आई, इंसान की कोई टके की औकात नहीं है। इसके बारे में लिखा है इंसान की हालत ऐसी है जैसे आसमान पर बादल फटकर गायब हो जाते हैं, इंसान भी सेकंडों में गायब हो जाएगा। इंसान की हालत ऐसी जैसे पानी का बुलबुला फटकर गायब हो जाता है, इंसान की भी हैसियत कुछ ऐसी ही है। तो मैंने कहा खुदावंद ये इतना बड़ा सूरमा था, इतनी इसकी इज्जत थी, ये तो चला गया, अब हमारा क्या होगा, हम किस खेत की मूली हैं। मैंने वहां पर खुदा को अपना मुनंजी माना और जिंदा हुए मुझे 4 साल हुए हैं। मैंने सबसे पहले यह टारगेट किया कि मैं अपनी मां को बचाऊंगा। आज कई साल गुजर गए, हर रोज 1 घंटे से 2 घंटा मैं अपनी मां को देता हूं। दुनिया में बचाइया वहां तो घर कलाम ना होए तो कितनी अजीब एली काहिन जैसी फिर हालत हो जाएगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, मुझे एक चीज जहन में आई, रात को जब मैं सो रहा था 1 महीना रोता रहा, तो मुझे एक आवाज आई, आपने जमीनी पे ओली ते ना रोना है, मेरे लिए कभी रोया है? आप अपने अजीजों के लिए इतना रोते हैं, अपनी मां के लिए इतना रोते हैं, अपने बाप के लिए इतना रोते हैं, अपनी बहनों के लिए इतना रोते हैं, कोई जमीन से चला जाए मर जाए इतना रोते हैं, लेकिन क्या अभी मसीह के लिए रोए? क्या मसीह ने आपके लिए मुंह पर थप्पड़ नहीं खाए? क्या मसीह ने आपके लिए मुंह पर थुकवाया नहीं? क्या मसीह ने आपके लिए कांटों का ताज नहीं पहना? क्या मसीह ने आपके लिए दाढ़ी नहीं नुचवाई? क्या मसीह ने आपके लिए अपना गोश्त नहीं फड़वा दिया? क्या जबूर की किताब में नहीं लिखा कि तुम मेरी सारी हड्डियां गिन सकते हो? क्या मसीह आपके लिए कुचला ना गया? यशायाह नबी की किताब में लिखा कि जैसे टमाटर को कुचल दिया जाता, मुझे ऐसे कुचल दिया गया। क्या आप कभी उसके लिए रोए? नहीं रोए तो फिर नाले भी ना रोवो। तो जे रोना जे तो पहला यस्सू ली रोवो कि ओ मेरे लिए चला गया। हम ये कहते सी मसीह कार पैदा होया तो बस असी निजात याफ्ता हो गए। किसी काम की ये निजात नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ये कलाम सीखना पड़ेगा। किससे सीखना है? उससे सीखे जिसने ये लिखा है। किसने लिखा है? खुदा के रूह ने लिखा है। खुदा के रूह को मांगिए, वो कहता है कि जब मैं तुझे कायनात की हर एक चीज दे सकता हूं तो मैं अपना आप भी तुझे दे सकता हूं। मैं तो वो खुदा हूं कि तू तो मेरे पास नहीं आ सकता, तू तो नापाक हो चुका, तूने तो फल खाया, तूने तो नाफरमानी की, आज तू चोरी करता है, आज तू डकैती करता है, देख तू मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन मैं अपनी अलूहियत को खत्म करता हूं, मैं अपने तख्त को साइड पे करता हूं, मैं जलाली से इंसानी निफसानी बन के तेरे पास आता हूं। हालेलुया! जिंदा खुदा अपना तख्त छोड़ के हमारे पास आता है। आपको चाहिए आप अपने माँ बाप को कलाम सुनाएं और उस तख्त पर जो खाली पड़ा है अपने माँ बाप को बिठाएं। जय यीशु दी, हर शाय यीशु दी। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आइए दोस्तों दुआ करेंगे ताकि आज का कलाम हमारे लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। आसमानी अब्बा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं क्योंकि आसमानी बाप तू ही जिंदा यहोवा पाक एलोहीम खुदा है।
तू ही मौदा मुनंजी खुदा, तू ही आफ्ताब सदाकत जिसकी किरणों में शिफा है, तू ही आसमानी बाप साहिब इख्तियार, साहिब जंग, साहिब कुदरत खुदा है। आसमानी बाप तू यह यानी निजात देने वाला खुदा, तू यह यानी यहोवा खुदा। आसमानी बाप तू रब्बुल अफवाज, रब्बुल आलमीन, जिंदा खुदा, लश्करों का खुदा, हय्युल कय्यूम, कदीमुल अयाम खुदा। आसमानी अब्बा तू ऐसा जिंदा खुदा है जो यहोवा यरी मुहैया करता है, यहोवा निस्सी कौमों का झंडा, यहोवा शालोम तसल्ली का खुदा। आसमानी बाप तू यहोवा राफा शिफा का मंबा और मबदा है। आसमानी बाप तूने फरमाया जिस घर में जाओ उस घर की सलामती चाहो। आसमानी अब्बा मैं इस घर की सलामती चाहता हूं, और ये लोग खुश नसीब है जो तेरे कलाम को सुनने के लिए यहां पर बैठे हैं। ये लोग खुश नसीब है जो तेरे कलाम को सुनने के लिए अपने जिस्म की कुर्बानी देते हैं। आसमानी अब्बा ये कुर्बानी इनकी रायगा ना जाए, बल्कि ये कलाम इनकी नस्लों के अंदर चला जाए, ये कलाम इनकी हड्डियों के अंदर चला जाए। आसमानी अब्बा इस घर की मैं सलामती चाहता हूं। इस घर के खुदा चीरखार बच्चे से लेकर घर के सरबराह तक सबको तेरी पनाह में देता हूं। जितने लोग बाहर से आए दूर और नजदीक सबको है खुदा तेरी पनाह में देता हूं। आसमानी अब्बा अपने आतिशी रथों के पहरे, अपने तमाम कुरूबीम सराफीम तराफीम, अपने तमाम मलाइक के पहरे इस घर के हरावल और चंडावल लगाना, और तेरा जलाल इस घर को घेरे रहे। आसमानी अब्बा कोई शैतानी तासीर यहां काम ना करे। अड़ोस पड़ोस में खुदावंद जितने लोग इस कलाम खुदा को सुने सबके सब बरकत पाए, और आसमानी बात कसरत की बरकत पाए। आसमानी अब्बा हर एक को कलाम पढ़ना सिखा ताकि ये तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे और बाप याकूब की तरह कहने वाले हों कि इस जमीन पर मेरे मुसाफरत के दिन है, परमानेंट एड्रेस मेरा आसमान है, क्योंकि अब मुझ में मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा रहा। मेरा जीना भी मसीह और मेरा मरना भी मसीह, मेरा जीना मसीह और मेरा मरना नफा। आसमानी अब्बा इन तमाम दुआओं मुनाजातों इल्तिजाओं को मांग ले तो तेरे ही प्यारे बेटे यहोशुआ मसीहा और अपने प्यारे दोस्त और भाई यीशु मसीह के नाम से आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। हालेलुया हालेलुया। आसमानी बाप ऐसा ही हमेशा तेरे ही है। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत खुदा के तमाम मुकद्दसीन के साथ हो, खुदा के तमाम बेटे बेटियों के साथ हो, खास कर आसमानी अब्बा इस जमात के साथ हो। ये जितने लोग यहाँ मौजूद हैं आसमानी बाप मैं चाहता तू इनकी रूहों को झंझोड़ ताकि खुदावन इनके दिलों पर ठोकर लगे और ये तेरे कलाम को पढ़े। और आसमानी बाप जैसे ये अपनों के लिए रोते हैं यस्सु के लिए भी रोए, और ऐ खुदा अपनी जिंदगी को भी बचाए और दूसरों की जिंदगी को भी बचाए। इन्हें मकसद बता कि इस जमीन पर तूने इनको पैदा क्यों किया। आसमानी अब्बा इन तमाम दुआओं मुनाजातों इल्तिजाओं को मांग ले तो तेरे उस बेटे के नाम से जो कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं, तेरे उस बेटे के नाम से जो कहता है जिंदगी का पानी मैं हूं, तेरे उस बेटे के नाम से जो कहता है हया शर हया जिंदगी मुझ में पाई जाती है, मैं हूं सो मैं हूं, तेरे उस बेटे के नाम से जो कहता है मैं मर गया था लेकिन अब जिंदा हूं, और देखो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, मेरी आंखें शोला की मानिद और मेरे पांव पीतल की मानिद। आसमानी अब्बा एक बार फिर से इन तमाम दुआओं मुनाजातों इल्तिजाओं को मांग ले तो तेरे उस बेटे के नाम से जो कहता है दरवाजा मैं हूं, तेरे उस बेटे के नाम से जो कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं, तेरे उस बेटे के नाम से जो कहता है अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, शुरू और अंजाम, अव्वल और आखिर मैं हूं। आसमानी अब्बा इन तमाम दुआ मुनाजातों इल्तिजा को मांग ले तो तेरे उस बेटे के नाम से जिसकी पोशाक पर लिखा है इलाहों का इलाह, माबूदों का माबूद, शहजादों का शहजादा, खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह। आसमानी अब्बा एक बार फिर से इन तमाम दुआओं मुनाजातों इल्तिजा को मांग ले तो तेरे ही प्यारे बेटे यहोशुआ मसीह और अपने प्यारे दोस्त और भाई यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा बाप खुदा बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। जय यसूदी, आवाज नहीं आई, जय यसूदी, जय यसूदी, हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन सुम आमीन। इबादत हो चुकी, आप एक दूसरे की सलामती मौसूल कर सकते हैं। जय यीशु, जय मसीह। भाई कोई भी नहीं जाएगा, खाना खा के जाए, जितने बैठे ना इतने बैठे। खुदा तेरा शुक्र है बेटी खुदा तेरा शुक्र है, तू ही जिंदा खुदा।
आप करेंगे प्रे? चलो, भाइयों में से बहनों में से कोई भी